हाय एवरीवन, दिस इज सौमेश दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के बारे में। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस एग्जैक्टली हाउ मच डीएसए इज रिक्वायर्ड इन फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटरव्यूज, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउंड्स आर देयर टिपिकली, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड फ्रॉम वेयर you can prepare so that you can crack any front-end engineering interviews, be it front-end engineering interview level 1 or front-end engineering interviews level 2. So if you are someone who is really interested in cracking these interviews in top tech companies, then you should definitely watch this video. I have discussed everything in complete detail as well as given you lots of resources that you can refer to master and crack these interviews. Before starting, I must say the like target of this video is 1.5 thousand likes. So go ahead and smash the like button, share this video among your friends and peers, and subscribe to the channel if you have not already. किसका इंतजार कर रहे हो? Now, without further ado, let's get started. Before starting, I have a very special message from Cryo. Cryo is one of the leading edtech platforms in the country which focuses on project-based learning rather than video-based learning. They have two amazing software development tracks. One is backend development track, the other one is full stack development track. Both of these tracks have amazing industry-grade projects which you will be building hands-on, and you can add them in your resume as well. Not only this, you will get support from industry leading mentors, teaching assistants, as well as you will also get exposure to a lot of amazing latest technologies including AWS, React, Java, Spring Boot, Mockito, and much more to get a glimpse of how projects are made in the industry. You can get a 10% discount using the code Soumyajit. I have given the link in the description below. So go there and definitely check out the courses. You can even avail a free week completely to see if it is for you, and then definitely use the code Soumyajit to get a 10% off. Typically speaking, front-end engineering interviews में DSA पूछा जाता है। अब ये जो प्रथा है to ask DSA questions in front-end engineering interviews is mainly followed in top tech companies. Generally speaking, startups में आपको DSA front-end के लिए एटलीस्ट नहीं पूछा जाएगा। मेनली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होगा या आपको पेज बनाने बोला जाएगा in case of any interviews that you go in startup. However, for major tech companies that are out there, DSA जरूर पूछा जाएगा। एटलीस्ट मैं ये सर्टेनिटी से जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में रहें और अगर आपको हमेशा ही किसी टॉप टेक या मेजर टेक कंपनी में जॉब करना है, तब आप डीएसए से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनफैक्ट इंजीनियरिंग मैनेजर के इंटरव्यूज में भी डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन दोनों ही पूछा जाता है। सो फ्रंट एंड इज नो एक्सेप्शन। बट आप ये पूछ सकते हो कि क्या फ्रंट एंड इंजीनियर को एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के जितना डीएसए पूछा जाता है या उस लेवल पे डीएसए पूछा जाता है या किस लैंग्वेज में कोड करने बोला जाता है, क्योंकि दीज थिंग्स आर अ लॉट डिफरेंट देन दैट ऑफ योर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटरव्यूज, and that is what we will discuss today. अब से in this entire video I will be calling front-end engineers as FEE, क्योंकि बार-बार front-end engineer बोल के सही नहीं लग रहा है। जैसे हमको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर में SD1 होता है, then SD2 होता है, then SD3 होता है। सिमिलरली फ्रंट-एंड इंजीनियर में FEE1 होता है, FEE2 होता है, FEE3 होता है, and so on and so forth। जिस हिसाब से एक SD1 को कोडिंग सबसे ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए and एक SD2 को ऑब्वियसली डिजाइन अच्छे से आना चाहिए, सिमिलरली टू दैट माइंडसेट एज वेल एक FE1 को कोडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए फ्रंट एंड की, एंड एक FE2 को कोडिंग तो आनी ही चाहिए अच्छे से, उसके साथ साथ डिजाइनिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिजाइनिंग ऑफ द फ्रंट एंड इटसेल्फ भी आना चाहिए। व्हेन आई से डिजाइनिंग ऑफ फ्रंट एंड, इट डज नॉट मीन कि आपको UX डिजाइन करना है, एक्सपीरियंस डिजाइन करना है, कौन सा कलर आएगा या कैसे आएगा, कौन सा बटन कहाँ पे होगा वो डिजाइन करना, ये नहीं। इनफैक्ट व्हाट आई डेफिनेटली मीन व्हेन आई से डिजाइनिंग फ्रंट एंड कंपोनेंट्स इज एसेंशियली कि अगर एक फ्रंट एंड का पेज आपको दिया रहेगा तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप उस पूरे पेज को कितने कंपोनेंट्स में तोड़ोगे, कौन सा पेरेंट कंपोनेंट होगा, कौन सा चाइल्ड कंपोनेंट होगा, कैसे आप डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करोगे, रिएक्ट रिडक्स कैसे यूज करोगे, कौन सा टेक स्टैक यूज करोगे, क्यों यूज करोगे, ये समझना एक FE2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली स्पीकिंग एक FE1 के इंटरव्यू के लिए 2 DSA राउंड और 1 कोडिंग राउंड लिया जाता है, और उसके साथ साथ एक हायरिंग मैनेजर का राउंड होता है। जो 2 DSA राउंड होता है उसमें
obviously the expectation is that you will be solving problem solving as well as data structures and algorithm के questions. अब क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है? जनरली क्वेश्चंस का लेवल इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ एन एसडीई इंटरव्यूज, क्योंकि वो आपका कोर स्किल सेट नहीं है. एंड वन मोर थिंग इज द एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ एन एफईई इंटरव्यू इज कि आप जो कोड करोगे वो जावास्क्रिप्ट में करोगे, क्योंकि दैट इज द प्राइमरी लैंग्वेज इन विच यू विल बी राइटिंग योर कोड. एज अ रिजल्ट ऑफ विच कई सारे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस हट जाते हैं, क्योंकि वो हम जावास्क्रिप्ट में इतने इजीली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. Hence, जो लेवल ऑफ डीएसए के क्वेश्चंस है, बी इट FEE 1 और FEE 2 इंटरव्यूज, वो हमेशा ही एक SDE 1 या SDE 2 के इंटरव्यूज से कम होता है. अब जो कोडिंग राउंड होता है उसमें एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट को यूज करके कोड लिख सकते हो कि नहीं और अलग अलग चीजें बना सकते हो कि नहीं. तो वहां पे भी आपको सिमिलर टू योर ऑनलाइन असेसमेंट कुछ पेज दिया रहेगा या कुछ डिजाइन दिया रहेगा या कुछ कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, जिसको यूज करके आपको कोई वर्किंग चीज बनानी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, इट माइट सो हैपन कि आपको बोले कि आप एक इमेज कैरोसेल बना के दिखाओ, आपको बोले कि आप किसी का UI बना के दिखाओ, उसमें ये XYZ फंक्शनैलिटीज चला के दिखाओ. ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको फ्रंट एंड कोडिंग स्किल्स पे बहुत ही ज्यादा ग्रिल किया जाएगा. बट इसका मतलब क्या ये है कि कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इन फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में? तो उसका आंसर देने के लिए मैं ये बोलूंगा कि डेफिनेटली यस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. ये जो 3 राउंड है, इन 3 राउंड में आपको डीएसए को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ चीजें बनानी भी पड़ेगी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करके. बट उसके साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाएंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड आपको JS कितने अच्छे से आता है और क्या क्या चीजें आती है. राउटिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, HTTP कोड, स्टेटस कोड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, API इंटरैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिनाउंसिंग के ऊपर, थ्रॉटलिंग के ऊपर, होस्टिंग के ऊपर, इवेंट लूप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. इसके अलावा गार्ड्स, लोकलाइजेशन, कुकीज, सिक्योरिटी, सर्वर साइड कम्युनिकेशंस, टाइप्स ऑफ रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, आइसोमॉर्फिक रेंडरिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सारी चीजें जो वेब डेव फंडामेंटल्स में आती है, ये सारी चीजें जो सिक्योरिटी बेसिक्स में आती है, वो पूछी जाएगी. इसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कैसे आप कर सकते हो किसी भी पेज का, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आप कैसे कैश का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप पेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, या और क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज योर एप्लीकेशन फ्रॉम द फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव. इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा ग्रिल किया जाएगा. So you need to study all these concepts in complete detail. So web dev fundamentals, security fundamentals, as well as performance fundamentals. ये 3 चीजें with respect to front end is extremely important for you to study. अब ये जो 3 राउंड है वो एक FE2 के इंटरव्यूज में भी सेम है एंड उसमें भी सिमिलर क्वेश्चंस पे ही आपको ग्रिल किया जाएगा. It might so happen that for an FE2 the amount of cross questioning will be more because it is expected that you already have 3, 4 or even more years of experience on front-end technologies and hence will be able to answer questions in much more detail, which is not the expectation from an FEE1. इसके अलावा for an FEE2, system design is immensely important. However, the system design in an FE2 is different than that of an SDE2. But इसमें भी चीजें आपको सिमिलर ही करनी पड़ेगी. आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा जिसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि किसी के लेट्स से आपको फेसबुक का पेज दे दिया एंड बोला कि इस पर्टिकुलर पेज को, फेसबुक के ऐप के पेज को या फेसबुक के वेबसाइट के पेज को डिजाइन करना है. या लेट्स से फ्लिपकार्ट का पेज दे दिया, उसको बोला कि आपको फ्लिपकार्ट के पेज को डिजाइन करना है. या स्विगी का पेज दे दिया और बोला कि आपको स्विगी के इस पेज को डिजाइन करना है. तो आप इस पेज को कैसे किन कंपोनेंट में तोड़ोगे, कैसे आप पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट के रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे, आप डेटा कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर करोगे, आप किस टेक स्टैक के ऊपर अपना फ्रंट एंड बनाओगे और क्यों बनाओगे, आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, परफॉर्मेंस कैसे आप एनहांस करोगे एंड सिक्योर कैसे बनाओगे अपने एप्लीकेशन को. नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ आपको API इंटरैक्शंस के बारे में भी ग्रिल किया जाएगा. यू विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू कोड आउट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स दैट यू थिंक विल बी रिक्वायर्ड
required to create the set front end as well as tell in detail how you will handle different scenarios that will be thrown at you from the backend. तो complete component architecture, routing is required or not, navigation, single sign-on, each and everything will be grilled in this round. तो हाँ, in one sense it is different than that of an SDE design round, but in the other sense it is also very much similar to what you will be doing on a day-to-day basis for a front-end engineer too. अगर आप इस राउंड में अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, then more often than not it will happen that your candidature will not be considered for an FEE2 and it will be down leveled to an FEE1. तो एक डिजाइन राउंड में अच्छा होना is extremely important. अब ये सारे राउंड्स के बाद आपके हायरिंग मैनेजर राउंड होता है एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी कि वो हायरिंग मैनेजर किस चीज पे फोकस करे. कभी कभी किसी कंपनी में हायरिंग मैनेजर राउंड्स आर मेनली फोकस्ड अराउंड योर पास्ट प्रोजेक्ट्स एज वेल एज बिहेवियरल क्वेश्चंस. अब how to prepare for these interviews, right? Because generally speaking SD interviews के लिए इतना सारा resources available है, but front end engineering interviews के लिए इतना नहीं है. तो figure not, I have already made a video where I had discussed about top web development technologies that one should study, and आप उस वीडियो को देख सकते हो. I will leave it in the card above as well as in the description below. उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे सारे resources हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, रिएक्ट के लिए, अलग अलग वेब डेव टेक्नोलॉजीज के लिए कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो ये सारी चीज़ें. नॉट ओनली दिस, आई विल ऑल्सो लिस्ट डाउन अभी 3-4 और ऐसे रिसोर्सेज जहाँ से आप पढ़ सकते हो. ऑब्वियसली बात है MDN के रिसोर्सेज आर लाइक होली ग्रेल बाइबल जावास्क्रिप्ट के लिए. डेफिनेटली देयर इज अनदर लिंक विच इज बेसिकली javascript.info करके, तो वहाँ पे भी जाके आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें पता चलेंगी. उसके साथ साथ 2 और गिटहब के डिपोजिटरीज है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लेके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं. तो यू कैन रीड थ्रू दोज रिपोजिटरीज एज वेल एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड इट अ लॉट यूजफुल. तो ये जो सारी चीज़ें आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये तो है ही है रिसोर्सेज. उसके साथ साथ मेरे पुराने वीडियो में जाके देखिए, वहाँ पे भी आई हैव लिस्टेड डाउन अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट्स, वीडियो बेस्ड प्लेलिस्ट्स as well as websites which you can refer to study with complete detail HTML, CSS, Bootstrap, SCSS, JavaScript, React, सब कुछ कैसे आप स्क्रैच से पढ़ सकते हो. तो जाइए, किसका इंतजार कर रहे हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिए पूरी तरह से. सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि front-end engineering interviews are very different than that of back-end engineering interviews or software engineering interviews. अभी इतना सारा information software engineering interviews के ऊपर तो है, but front-end engineering interviews के लिए नहीं है. That's why I thought I should make one video around front-end engineering interviews and detailing out everything that is there in these interviews, how these are similar to that of an SD interviews and how they are so different than that of an SD interview. I really hope that you liked this video. If you did, then smash the like button. The like target of this video is 1.5 thousand likes. Subscribe to the channel if you have not already and hit the notification bell. And share this video among your friends and viewers. This will definitely help me a lot. Abhi comment karo niche what different videos you would want me to make. I'll gladly make them. This is your host Soumyajit bidding goodbye. Das Vedanya. You're a superhero.